So today's lecture will have question number 109 and onwards. All right. So question number 109. Figure 7.1 shows a straight wire between the poles of a magnet. The wire carries a current into the page. So again, ये अब जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो it should automatically lead you to a certain conclusion कि यार ये कौन सा टॉपिक का सवाल होना चाहिए. Sometimes you may be right, sometimes you may be wrong, but it automatically creates a default कि आपको सारे formulas याद आना शुरू हो जाएंगे, आपको सारा process जो है वो याद आना शुरू हो जाएगा. तो this right here has a magnet. Magnet के बीच में एक वायर है, वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है. तो ऑटोमेटिकली मेरे जहन में अब यहाँ पे फ्लैश होना चाहिए कि it should have something to do with the Lorentz force and the Fleming's left hand rule. All right. State the direction of the magnetic field between the poles. The direction of magnetic field is always from what direction to what direction? From north to south. Yes. So direction of magnetic field, straight lines होंगे, curves होंगे. In between two magnets, it's always uniform magnetic field, and uniform magnetic field जो है वो क्या होगी? It's gonna have straight lines. State the direction. अब यहाँ पे बनाना नहीं है. You have to write. All right. So आप either you can say towards the right, or sorry, towards the right, or you can say from north to south. All right, so from north to south. ठीक है. On figure 7.1, draw an arrow to show the direction. Draw an arrow. सही है. तो अब जब हमने multiple arrows बनाए हुए, they're all useless. We just have to draw one arrow. So north से लेके south आपने एक arrow बना दिया. Figure 7.2 shows two wires. Each wire carries a current into the page. Draw the magnetic field due to the currents in the wires. तो अगर electromagnetism, how do we figure out the direction of magnetic field of a current carrying conductor? The right hand rule, सबको याद होना चाहिए. Right hand rule में again the cross means what? The direction of the current is inside the page. Yes. And if the direction of current is inside the page, तो जाहिर सी बात है आपका direction of magnetic field जो है वो क्या होगा? Use the right hand rule. Again, right hand, the direction of magnetic field is going to be clockwise. All right. So the direction of magnetic field is going to go down here, up here, down here, and up here. All right. That's going to be the direction of magnetic field. Draw the magnetic field due to the current in the wires. Did I draw it correctly? क्या मैंने ये सही बनाया या गलत बनाया है? Can someone tell me कि मैंने ये क्या ये सही बनाया या गलत बनाया है? गलत क्यों बनाया है? नहीं, होना तो clockwise चाहिए. So this right here, again, right hand, current's direction inside the page. So the direction of magnetic field is going to be clockwise. That's fine. What's not fine is the fact that the magnetic field of current or in a current carrying conductor is, the pattern is what? The pattern is concentric circles. तो खाली ये direction दे देना is not going to be enough. You need to draw those concentric circles. All right. So the direction of magnetic field is going to be concentric circles. आपने 2 या 3 circles बना के दिखा दिए और इन circles के ऊपर आप direction mention करोगे and that's going to be the direction. Does that make sense to everyone? ये कहानी clear है? बना लीजिए बेटा जल्दी जल्दी. Again, how many of you have those? क्या कहते हैं? Read and write के past papers. सबको अब अगले 1.5 महीने past papers ही लाने हैं. अगले 2 महीने जो है वो आपने read and write के या जो भी आपके पास past papers हैं वो आपने past papers ही लाने हैं. अगले 2 महीने इसी तरह से हम लोग past papers करते रहेंगे. Sometimes we are going to switch to P1s and P4s as well. P1s, why? Because P1s are a good way to make sure कि आपको पूरे जो coming syllabus है उसके बारे में सारी चीज़ें पता लग जाए. तो एक बार इस महीने के एंड तक जब सारी यूनिट 1 की वीडियोस डन हो जाएंगी तो फिर नवंबर के अंदर हम 2-3 क्लासेस के अंदर यूनिट 1 के
पास्ट पेपर्स और यूनिट 1 के MCQs भी करेंगे. वी आर गोइंग टू डू दैट इंशाल्लाह एज वेल. On figure 7.2, draw the magnetic field due to the current in the wire. So we draw these concentric circles. All right, जिनके पास past papers नहीं है, of course ये copy के अंदर करेंगे वो लोग. There is a force on each wire due to the current in the other wire. Draw an arrow on each wire to show these forces. मैंने आप लोगों को एक rule बताया था. The rule was कि whatever the direction of current is, it follows or it goes opposite the direction of और द फोर्स ऑन पोल्स. मीन्स अगर पोल्स सेम होते हैं तो उनके ऊपर फोर्स क्या होता है? रिपल्शन होता है. तो यहाँ पे करंट सेम होगा तो इनके ऊपर फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. सही है. सो द फोर्स ऑन, लेट्स कॉल दिस वायर ए एंड लेट्स कॉल दिस वायर बी. तो ए के ऊपर लेफ्ट राइट वर्ड फोर्स होगा और बी के ऊपर लेफ्ट वर्ड फोर्स होगा. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? सेम पोल्स होंगे, रिपेल करेंगे, सेम करंट होगा, अट्रैक्ट करेगा. ऑपोजिट पोल्स होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बट ऑपोजिट करंट्स जो है वो क्या होंगे? रिपेल करेंगे. बेटा आप लोग हो गया तो हम लोग कंटिन्यू कर लें. आप लोगों का हो गया? पक्की बात है? नहीं, अगर आप बोलो तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. आप लोग कंटिन्यू कर लें प्लीज़. ऑल डन? Yes or no? I want to hear you. Yes or no? Are you done? Yes or no? Yes. What about you? पक्की बात है? Good. कॉपी निकालना. अब would you bother? At least try and bother to have your copies out and do get some work done. So we've drawn the arrows. All right. So drawn the arrows and we are done with this question. So that was this question. ठीक है जी. Then we've got question number 110. Again this is cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope के questions जो हैं वो हम लोगों ने as a topic हम लोगों ने नहीं किया है ये. तो अगेन आई एम जस्ट गोना गो थ्रू दिस क्वेश्चन ताकि वो रूटीन में आ जाए, ताकि वो सीक्वेंस में आ जाए. उसके बाद फिर जब हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंप्लीट कर लेंगे यू कैन गो बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन. जो आपकी वीडियोस अपलोड होंगी दे आर गोइंग टू बी अपलोडेड विद अ कॉपी ऑफ योर पास्ट पेपर्स एंड द पेज नंबर्स. अब जैसे ये क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 110 है. सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अप टू पेज नंबर 110 आप उसकी वीडियो पे जाएंगे. उस वीडियो के ऊपर आपके पास जिस तरह से यूट्यूब के अंदर वो बने हुए होते हैं ना, मार्कर्स लगे हुए होते हैं. आई एम गोना ट्राई, आई होप दैट आई एम एबल टू फाइंड द टाइम टू पुट दोज मार्कर्स कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है. तो इस तरह से वो मार्कर्स होंगे तो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई वुड सजेस्ट कि आप, बिकॉज जाहिर सी बात है हमें रिवाइज भी करना है तो आप पूरी वीडियोस देखें. बट अगेन इफ़ यू वांट टू स्किप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर हो, आपको क्वेश्चन नंबर 110 नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? आप 110 वाली वीडियो ओपन करेंगे, यू स्किप डायरेक्टली टू 110 और फिर उसके आगे से उसका क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 110, स्टेट वाई द फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस राइट हियर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये इन्हीं वीडियोस के अंदर के कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट होते हैं. ऑल राइट, वही टिपिकल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इससे पहले वाला जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का सवाल था उसमें भी यही सवाल था कि स्टेट वाई द फिलामेंट एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स. अगेन यू गेट द सेम क्वेश्चन एंड आंसर इज के फिलामेंट गेट्स हीटेड अ लॉट. सही है. The filament, when it gets heated, electrons will gain energy and go out of the filament. सही है. तो ये आपका simple reason होगा. So suggest why filaments emit electrons. तो यहाँ पे जो phenomena है, the phenomena is known as thermionic. So the phenomena is known as thermionic emission.
So the phenomena is known as what? Thermionic emission. All right, and thermionic emission के अंदर क्या होता है? Your filament gets heated a lot. All right, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है आपका फिलामेंट. पुराने टीवी या पुराने मॉनिटर्स वगैरह आपने देखे होंगे कि पुराने मॉनिटर्स अक्सर जो है बहुत गर्म हो जाते हैं. आजकल की एलसीडीज़ और एलईडीज़ इतनी गर्म नहीं होती. पहले के टीवीज़ पावर ज़्यादा कंज्यूम करते थे, अब एलईडीज़ और एलसीडीज़ जो है वो पावर्स भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती. रीज़न फॉर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पावर इज़ बिकॉज ये पीछे पूरा प्रोसेस चल रहा होता था जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते थे. सो अगेन स्टेट वाई द फिलामेंट्स एमिट इलेक्ट्रॉन्स. You are simply going to state due to thermionic emission. All right, and if you want to further break it down, तो आप कहेंगे कि जो आपका filament है, it absorbs a lot of energy. Electrons get heated up and they get ejected from the filament because the forces of attraction are broken. बस जाहिर सी बात है वो पूरी एक again अगर question कहता है explain why the filament emits electrons. अगर क्वेश्चन कहता स्टेट why the filament emits electrons, तो in that case yes आप पूरा लिखेंगे. explain अगर क्वेश्चन बोलेगा कि explain why the filament emits electrons, then you of course you are going to write कि heat absorb करेंगे, force of attraction break down हो जाएगा and the electrons get ejected. But in this case the question is just saying state, so again they get ejected because of thermionic emission. State how the electrons are made to move at high speed. अच्छा, अब ये जो high voltage supply है between the filament and the anode, so this right here, the filament is kept at a negative charge and the anode is kept at a positive charge. देखें ना, anode जो है वो किसके साथ connected है? Electrons के ऊपर charge क्या होता है? Negative charge होता है. तो जब ये filament electrons release करेगा, तो suddenly the electrons are going to get attracted to the what? To the anode, and that force of attraction is going to accelerate the electrons. All right, how do electrons are made to move at high speed? So the positive anode is going to attract the electrons. So what are you going to write? You are going to write positive anode will attract electrons. So here positive anode will attract electrons and accelerate them causing them to move at high speeds. जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वुड हैव जस्ट रिटन डाउन दैट द पॉजिटिव एनोड विल अट्रैक्ट एंड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्लेंटी. व्हाई अ वैक्यूम इज नीडेड इनसाइड द ऑसिलोस्कोप. तो अगेन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर वैक्यूम नहीं होगा और अगर एयर पार्टिकल्स होंगे तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द इलेक्ट्रॉन्स? दे आर गोइंग टू कीप ऑन बम्पिंग इनटू दीज एयर पार्टिकल्स एंड दे वोंट बी एबल टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. सही है. सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड वैक्यूम टू मेक श्योर कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर सकें. व्हाई डू वी नीड अ वैक्यूम? टू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू मूव in a straight line and prevent collisions with other particles. So we want that the electrons should not be colliding with other particles and they should be moving in a straight line. अगर जाहिर सी बात है vacuum नहीं होगा तो that's we won't be able to achieve that. Next, in a second 8 times 10 raised power 14 electrons pass through the hole in the anode. The charge in an electron is 1.6 times 10 raised power minus 19. Calculate the current in the electron beam. So that's going to be easy. आप लोगों को नोट्स में अगर आप देखोगे तो आप लोगों के दो फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे. द टू फार्मूलाज दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड आर
Number 1, I, the current, is equals to charge upon time. I, the current, is equals to what? That's equals to charge upon time. And the total charge of a number of electrons is equals to n times E. Exactly, yes. N जो है वो क्या है? It's number of electrons. How many? 8 into 10 raised power 14 electrons are passing through. And the charge on one electron is how much? That's 1.6 times 10 raised power minus 19. अब कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, वरना इट्स सिंपल. 8 times 1.6 is how much? That's going to be 1.28 times 10 raised power 12.8 minus 4 हो जाएगा. चेक करो कूलॉम्स. इज दैट द चार्ज? कैलकुलेटर यूज़ कीजिए जल्दी बेटा. -5 है, -4 है बेटा, लेकिन वो 12.8 है ना, तो उसका एक डेसिमल प्लेस मूव होगा. कैलकुलेटर से फिगर आउट करो. -4 है कैलकुलेटर में, राइट? कूल. So, and that is the amount of charge that's moving per unit time or per second. The question says that the charge in each second 8 times 10 raised power 14 electrons pass. So, the charge, we know, okay, total charge of this many electrons is going to be 1.28 into 10 raised power minus 4 and the time is 1 second. तो आपका जो करंट होगा वो क्या होगा? वो भी 1.28 into 10 raised power minus 4 होगा amperes. Alright, so either you can do that, you can write 12.8 milliamperes. तो अगेन इस तरह से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, बट जनरली आंसर इन SI यूनिट्स. ज़्यादातर आंसर जो है वो आपके SI यूनिट्स के होने चाहिए. नहीं, so not 12.8, sorry, it's going to be 0.128 milliamperes. सही है. सो आई थिंक यू शुड राइट इन SI यूनिट्स. तो ये 1.28 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 एम्पेयर्स हो जाएगा. ऑलराइट, मिली एम्पेयर्स में कितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं? मिली एम्पेयर्स इज व्हाट? 10 रेज पावर माइनस 3. मिली एम्पेयर्स इज 10 रेज पावर माइनस 3. अब अगर 10 रेज पावर 4 को 10 रेज पावर माइनस 3 करेंगे, हाउ वुड यू डू दैट? How would you convert from 10 raised power minus 4 to 10 raised power minus 3? आप पावर्स में एक 1 प्लस करेंगे. पावर्स में +1 होने से क्या होगा? Your decimal place moves to the right or to the left? Simple सा सवाल है. Got nothing to do with physics but with math. If you add power to the decimal, so if you add power to 10, minus 4 को -3 कैसे बनाया? You do a +1. तो you move it to the right or to the left? $900 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या होगा? 9 into 10 raised power 2. Decimal place moved to the left. पावर्स क्या हो गई? 2 पावर्स 10 की ऐड हो गई. तो मूविंग टू द लेफ्ट एड्स पावर्स. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 10 रेज पावर माइनस 4 को -3 बनाया. तो वी आर एडिंग 1 to the power of 10, hence decimal place will move to the left. It's going to be 0.128 into 10 raised power minus 3 amperes. Of course, that's not going to be in standard form. तो हम मिली एम्पेयर्स में आंसर दे रहे हैं, तो दैट्स गोइंग टू बी 0.128. 10 रेज पावर माइनस 3 मिली बन जाएगा और आगे यूनिट क्या है? एम्पेयर्स है. तो अगेन बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कभी कभार थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है. क्या हुआ? पक्की बात है? नहीं, मैंने अभी यही बताया ना कि बेटा आप आंसर ऐसा यूनिट्स के अंदर करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर आपको चेंज करनी हो पावर तो क्या होगा. पावर ऐड मूव टू द लेफ्ट, पावर सब्ट्रैक्ट मूव टू द राइट. सही है? पावर ऐड करनी है, यू मूव टू द लेफ्ट. पावर सब्ट्रैक्ट करनी है, यू मूव टू द राइट, और वाइस वर्सा. राइट पे मूव करना है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी. लेफ्ट पे मूव करना है, पावर ऐड हो जाएगी.
क्या हुआ, क्या हुआ? बोल दे बेटा, बोल दे बेटा, पक्की बात है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 111, सॉफ्ट आयन इन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? मैग्नेटाइज हो जाएंगे। मैग्नेटाइज होके क्या होगा? सॉफ्ट आयरन के पीसेस हैं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद करंट। आई एटलीस्ट आई डोंट थिंक अभी फिलवक्त करंट का ऐसे कोई लेना देना है। अगेन आयन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बिकम मैग्नेटाइज्ड। यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो साउथ एंड नॉर्थ, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर ये दोनों आयरन पीसेस क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। सही है, दैट्स व्हाट आई थिंक इज गोना हैपन। अब क्वेश्चन इस बारे में है कि नहीं है, at this point I don't know, I'm just speculating at this point. The pieces of iron become magnetized. On figure 7.1 mark the magnetic poles produced at each end of both the pieces of iron. We already did that, वो काम हम कर चुके हैं। Figure 7.2 shows a reed switch, ये applications of electromagnetism के अंदर है। A reed switch is placed between the poles of a strong permanent magnet. State and explain what happens. So again, जिस तरह से हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि it's placed in between poles of strong magnet, so let's bring down the poles. यहाँ पे आपके पास north है, यहाँ पर आपके पास south है, तो south is going to induce north and south over here, north is going to induce south and north like so, and when you bring the poles, आपने समझा दिया कि भाई इस तरह से इंडक्शन होगा, एंड इंडक्शन की वजह से द एंड्स ऑफ द सॉफ्ट आयरन आर गोइंग टू डू व्हाट? अट्रैक्ट ईच अदर एंड विल क्लोज द डिस्टेंस और विल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यस, डज दैट मेक सेंस? सही है। वो मैग्नेट्स जब नहीं होंगे तो क्या होगा? ये इंड्यूस्ड पोल्स भी नहीं होंगे, पोल्स इंड्यूस नहीं होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे फिर। सही है। So the reed switch is placed in between the poles of a strong magnet. State and explain what happens. अब 2 मार्क का है तो state करो what happens. What's going to happen? The ends of the soft iron pieces will attract each other and come into contact. सही है। So again, the ends of the soft iron pieces will attract each other and come into contact. Explain why. Because the induced poles are opposite. Because the strong permanent magnets will induce opposite poles on the soft iron pieces. सही है, because the permanent magnet will induce opposite poles on the soft iron pieces. Yes. कब लिखोगी बेटा फिर बाद में? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, does this question make sense? ये बात सबको क्लियर है? पेज नंबर 111. Is this clear to everyone? जल्दी बताइए। Me? Nope. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 111. Sorry, 111 कर लिया. 112 is almost the same question continued. State. अच्छा नहीं, it is the same question continued. इसी का part C है. Sorry, my bad. So page number 112. Figure 7.3 shows 2 separate electrical circuits.
पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या कर रहा है? सो एक सर्किट तो आपका ये आ गया. लेट्स नेम दिस. Let's name this circuit number 1. Let's name this circuit number 1 and let's name this circuit number 2. सर्किट 1 का काम क्या है? सर्किट 1 के अंदर कोई भी स्विच नहीं है, आप उसे एक्सटर्नली ऑन या ऑफ नहीं कर सकते. लेकिन जो सर्किट 2 है उसमें एक थर्मिस्टर लगा हुआ है. मीन्स अगर आप टेम्परेचर जो है वो बहुत कम कर दोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा. थर्मिस्टर के बारे में याद रखें कि थर्मिस्टर जो है आपके पास दो चीज़ें हैं. थर्मिस्टर है एंड एक LDR है. हाउ इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर एंड एन LDR गोइंग टू चेंज? इट लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. So the resistance of an LDR as in light dependent resistor and a thermistor is going to go in the opposite direction to the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी के क्या जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. थर्मिस्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम. टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज. लाइट बढ़ा दोगे LDR का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा. एंड लाइट कम कर दोगे तो LDR का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंस है एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जाना है. सही है. Inverse, again inversely proportional, it's not quantifiable, it just moves in the opposite direction, does not mean it's always going to be inversely proportional. Inversely proportional का मतलब ये है कि वो quantify होता है. यहाँ पे हम इसको quantify नहीं कर रहे हैं, हम एक qualitative analysis present कर रहे हैं कि the direction of the physical quantity and the direction of resistance is going to be opposite. Alright, state what happens to the thermistor when the temperature of the air rises. टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मिस्टर के रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा? एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा. सही. तो अगेन इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल आइडिया, इट्स गोइंग टू बी इजी टू रिमेंबर. ऑलराइट, I'm a man of simple ideas. सही है जी. अच्छा, state what happens to the thermistor when the temperature of air rises. आप लिखेंगे resistance decreases. अच्छा, a lot of kids are going to be tempted into doing something, and that something is to write when the temperature of the air increases, the resistance of the thermistor will decrease. Please don't give in to that temptation. सही है. क्वेश्चन जितना पूछ रहा है उतना जवाब देना है. क्वेश्चन ने पूछा कि थर्मिस्टर को क्या हुआ, तो आपको स्टोरी नहीं लिखनी, आपने बताना है कि थर्मिस्टर को क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज. ख़त्म कहानी. Explain why the warning lamp lights up when the air temperature increases. Air temperature increase होगा, resistance कम हो जाएगा. Resistance कम होने की वजह से it's going to allow the current to flow. When it allows the current to flow, again the coil is within a solenoid. Sorry, ये जो आपके जो switches हैं, they are within a solenoid. Again, when current starts flowing through the solenoid, it's going to induce it's going to induce poles. Can someone tell me exactly which poles and in what direction? Again, using the right hand rule, if the current is going from behind and then to the front, so the north is going to be towards your right. So यहाँ पे north होगा, यहाँ पे south होगा. Alright? Nope, sorry, my bad. The other way round. It's going to be the other way round. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ से करंट नीचे आएगा. सो करंट जो है वो एक्चुअली कहाँ जा रहा है? आगे से पीछे जा रहा होगा करंट. नहीं ना, ऐसे जाने के लिए करंट जो है वो यहाँ से जाके फिर घूम के आएगा ना. अगेन बैटरी के करेक्शंस देखो, बैटरी के करेक्शंस कहाँ हैं? बैटरी के करेक्शंस. शिश क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग क्यों पेन्स एक्सचेंज कर रहे हो? सो अगेन
अगर यहाँ पे पॉजिटिव, सो ओवर हियर इट्स नेगेटिव, एंड सो देयर इज नेगेटिव ओवर हियर, देयर इज पॉजिटिव ओवर हियर, सो करंट यहाँ पे जाएगा एंड देन आगे से पीछे जाएगा करंट. ऑलराइट, सो इफ द करंट गोज फ्रॉम फ्रंट टू द बैक, द नॉर्थ पोल इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स योर लेफ्ट. ऑलराइट, सो यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ पे साउथ होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग दैट्स हाउ द पोल्स आर गोइंग टू बी. अब जाहिर सी बात है, पोल्स इंड्यूस होने से क्या होगा, ये जो बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होके बंद हो जाएंगे. अट्रैक्ट होके बंद होंगे तो दैट्स गोइंग टू क्लोज दिस सर्किट. ये सर्किट आपके लैंप को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सर्किट वुड दिस बी? किस तरह का सर्किट जो है ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये किस तरह का सर्किट होगा? It's probably a fire alarm. It's either a fire alarm or a temperature monitoring system. Fire alarm क्यों? Fire alarm इसलिए क्योंकि अगर आग लगेगी, temperature of air rises, या warning light जल जाएगी कि कुछ गड़बड़ है. या तो फिर आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम्स होते हैं, हीटर अगर आपने चला दिया, आपको पता होगा, आपको यू नीड टू फिगर आउट कि व्हेन इज़ द हीटर, व्हेन शुड आई क्लोज द हीटर. तो क्या होगा, आपने हीटर चला दिया, जैसे ही आपका टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वार्निंग लाइट जल जाएगी, आप हीटर क्या कर दोगे, बंद कर दोगे. तो ईदर वन ऑफ दोज सिस्टम्स कैन यूज दिस सर्किट. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई द वार्निंग लैम्प लाइट्स. तो अगेन, एज द रेजिस्टेंस of the thermistor decreases, current flows. अच्छा, आप कैसे बताओगे कि करंट कौन से सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है जब थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हुआ? तो दैट्स वेयर लेबलिंग अ सर्किट कम्स इन. मैं अपनी मर्जी से इसको 2 लेबल कर दूंगा, अपनी मर्जी से इसको 1 लेबल कर दूंगा, एंड आई एम गोइंग टू राइट एज सच, एज द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर डिक्रीजेस, करंट फ्लोज इन सर्किट 2. करंट फ्लोज इन सर्किट 2, इंड्यूसिंग poles on the soft iron pieces ठीक है जी. The soft iron pieces will attract each other, closing circuit 1 and the warning lamp will light up. And the warning lamp will light up. ये दूसरे लड़के का नाम क्या था? हाँ, कहाँ पर है ये? हाँ, अच्छा, ऑल राइट. ताहा बेटा उसको पकड़ के लाओ ना. ये कहाँ निकले रे? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? गुड, चले जी. ऑल राइट, सो वी डिड कितने? वी डिड 3 क्वेश्चंस. ऑल राइट, 109, 1010, 1011 एंड 12 दोनों के ऊपर सेम क्वेश्चन है, और फिर 113 हमने अभी स्टार्ट किया नहीं है. सो वी आर गोइंग टू लीव इट टिल हियर, यहीं तक रखेंगे. चलें ठीक है, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.